اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی قابل صد تکریم انجمن طلبہ اسلام شیخن اور رابطہ کلاں کے تمام کارکنان، آپ کے علاقہ سے تنظیمی حوالے سے کافی پرانا تعلق ہے۔ جب میرے پاس شمالی پنجاب کی ذمہ داریاں رہیں تو تب بھی یہاں پر حاضری کے کافی بار موقع ملا، اور آج ایک بطور مرکزی ذمہ دار آپ میں حاضر ہو کر ایک بڑی خوشی فیل ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کے علاقے میں انجمن طلبہ اسلام کا پودا جب سے لگا ہے تو ہمیشہ سے اس پہ بہار ہی رہی ہے، ہمیشہ سے اس پر تازہ شگوفے اور نئی کلیاں اور نئے کھلے پھول نظر آتے رہے ہیں۔ انجمن طلبہ اسلام شیخن میں انجمن طلبہ اسلام کا یہ خوبصورت درخت کبھی خزاں کی زد میں نہیں آیا۔ تو جی وقار اس بات پر آپ تمام احباب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور جی وقار آج سے ہم شہدائے انجمن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عشرۂ شہدائے انجمن بھی منا رہے ہیں، اور ساتھ ہمارا یہ جو افتتاحی پروگرام ہے ہمارے دورے کا، یہ ایک ہفتے کا 3 ہفتوں کا دورہ ہے بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کا۔ اس کا پہلا پروگرام بھی ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں کثیر تعداد میں یہاں پر کارکنان کو اکٹھا کیا، بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اور جی وقار اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے الحمدللہ جو یا رسول اللہ کہنے والا قبیلہ ہے، اس کے جتنے پارٹیسپینٹس جماعتیں ہیں، چاہے وہ تحریک منہاج القرآن ہو، چاہے وہ دعوت اسلامی ہو، چاہے وہ جماعت اہل سنت ہو، چاہے وہ جمعیت علماء پاکستان ہو، چاہے تحریک لبیک ہو، تحریک صراط مستقیم ہو، وہ الحمدللہ سارے ہمارے اپنے ہیں، اور ان سے کمپیریزن کرنا نہ ہمارا مقصد ہے نہ بنتا ہے، مگر جی وقار آپ انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان کے ذہنوں میں یہ بات راسخ اور پختہ کرنے کے لیے کہ انجمن طلبہ اسلام اس ملک کی، انجمن طلبہ اسلام یا رسول اللہ کہنے والے لوگوں کی، انجمن طلبہ اسلام اس ملت اسلامیہ کی، اور انجمن طلبہ اسلام ایک خوبصورت سماج کی ضرورت ہے۔ کچھ باتیں ضرور کہنا چاہوں گا۔ ویسے تو میری یہ ایک عادت ہے آفر صاحب، بس چلتے ہوئے جو دوستوں کے ساتھ راستے میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہی اگلی نشست میں گفتگو آ جاتی ہے، تو آتے ہوئے میں دوستوں سے ایک بات کہہ رہا تھا تو دل کیا ہوئی آپ سے بھی کہہ دوں کہ میں پچھلی بار بلوچستان کے دورے پر تھا، تو وہاں پر ایک بندے نے ایک بڑا خوبصورت سوال پوچھا، وہ پوچھنے میں حق بجانب تھا، اور جو میں نے جواب دیا وہ اسے بھی ماننا پڑا، اور یقیناً ہر فرد کو ماننا پڑتا ہے۔ اس نے مجھ سے ایک بات پوچھ لی، اس نے یہ پوچھا، تب میں وہ جشن تشکیل انجمن کے دورہ پر تھا اور ہر جگہ پر انجمن طلبہ اسلام کے خوبصورت 53 سالوں کی بات کرتا، تو اس نے یہ پوچھا کہ حضور آپ کے 53 سال ہیں اور تحریک لبیک کے یہ 5-4 سال ہیں، تو ان کا پلڑا بہت بھاری نظر آتا ہے، آپ کے پلڑے میں کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے کہا کہ آپ نے بڑی محبت میں سوال کیا، لیکن میں آپ کو رپلائی کرتا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے میں نے کہا کہ ایک گھر میں والد ہوتا ہے،
अब उस घर से जन्म लेने वाले बेटे एक अच्छा किरदार अदा करते रहते हैं, मगर कामयाब घराना वही होता है जहां पर वालिद के रोहब में कोई कमी नहीं आती और जहां पर वालिद की अहमियत हर दौर में महसूस की जाती रहे, तो वही कामयाब घराना होता है। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह कहने वालों में अंजुमन तलबा इस्लाम को वालिद की हैसियत हासिल है, बिकॉज के JUP के बाद अंजुमन तलबा इस्लाम अहले सुन्नत पाकिस्तान का पहला फोरम है जहां से इज्तिमाई तौर पर एक या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद हुआ और JUP ने अपनी अहमियत को खत्म कर लिया, मगर अंजुमन तलबा इस्लाम आज भी उसी आबोताब के साथ ये नारा लगा रही है जिसमें 1968 में लगाया था। फिर मैंने बात करते हुए कहा, मैंने कहा कि अब आप अंजुमन तलबा इस्लाम के कारनामे पूछते हैं तो लिखिए अंजुमन तलबा इस्लाम को जिन महाज सौंपे गए TI को, अंजुमन तलबा इस्लाम ने वहां पर फतह हासिल की। उन महाजों में इस्लामी जमीयत तलबा का बढ़ता हुआ असर रसूख था। अंजुमन तलबा इस्लाम ने उनके शख्सी नारों के जवाब में जो सैयदी मुर्शदी या नबी का नाकाबिले तस्खीर नारा दिया, तो वो नारे कुचले गए, मगर अंजुमन तलबा इस्लाम का ये नारा आलमगीर नारा बन गया है। और मेरा ये वजदान कहता है कि आसमानों पर फरिश्ते और जन्नत में हूरें भी अंजुमन तलबा इस्लाम का ये नारा लगाया करते। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी। मैंने दूसरी बात की, मैंने कहा एक तो ये कि शख्सी नारे कुचल कर अंजुमन तलबा इस्लाम ने या रसूल अल्लाह का नारा जिस सुर और आबोताब से लगाया वो कोई और नहीं लगा सका, एक बात। फिर मैंने दूसरी बात करते हुए कहा, मैंने कहा कि अंजुमन तलबा इस्लाम को NSF का सामना था, PSF का सामना था, लादीनियत का सामना था। अंजुमन तलबा इस्लाम ने NSF का वजूद तक खत्म कर दिया, आज वो कहीं नजर नहीं आते और अंजुमन तलबा इस्लाम तलबा में इस्लामी रूह बेदार करने के लिए कोशिश है। फिर मैंने तीसरी बात की, मैंने कहा कि जो एक अफगान की तरफ से मुतशद्दद रवैये एक मजहब की छतरी के नीचे बड़े सगीर की तरफ बढ़ रहे थे और जिनके कुछ पेश रो, जिनके सामने चलने वाले को हरावल दस्ते यहाँ पर लश्कर जंगवी और लश्कर तैयबा की सूरत में पहुंचे और इस उम्मत का एक बार जीना दो बार किया और यहाँ पर कत्ल गारत गरी की, अंजुमन तलबा इस्लाम ने अपने नौजवान कुर्बानी में दिए और उनको कुचला। और ये जो मुतशद्दिद रवैये बढ़ रहे थे, ये पख्तून बेल्ट पर KP के और बलूचिस्तान में जाकर एक बंद बांधा और 53 सालों से अंजुमन तलबा इस्लाम उनको वहीं रोके हुए है। हमारी ये पट्टी वो उस तरह अपनी लपेट में नहीं ले सके। तो ये अंजुमन तलबा इस्लाम का दूसरा कारनामा है कि अंजुमन तलबा इस्लाम इस कारनामे में आज भी पूरी आबोताब के साथ अपने महाज पर डटी हुई है। ये वकार उसके बाद मैंने तीसरी बात की, मैंने कहा तीसरी बात ये थी कि अंजुमन तलबा इस्लाम कच्चे मिजाज के लोगों को लाते और उनको इसके मुस्तफ़ा की दौलत दे देते। तो अंजुमन तलबा इस्लाम ने अपनी ये ड्यूटी भी निभाई। मैंने कहा कि आप मुझे ये दीगर जो हमारी जमातें हैं कंपैरिजन करना नहीं बनता, हमारी अपनी हैं, मगर एक सवाल के जवाब में मैंने कह दिया, मैंने कहा तरीके मिनाजुल कुरान है, दावत इस्लामिया है, इन जमातों से कहें कि कोई 4 बंदे ही दिखा दें जो इन्होंने किसी दीगर फिक्र से इश्क मुस्तफ़ा के फिक्र में लाए हो, तो इनके पास से नहीं मिलेंगे। एक अंजुमन तलबा इस्लाम है जिसमें 40% लोग ऐसे होंगे जो किसी और फिक्र से थे, जिनके घरों में या नबी कहने पर शायद पाबंदी होगी, मगर उन्होंने जमाने में या नबी के फैलाने में अहम किरदार अदा किया। तो ये अंजुमन तलबा इस्लाम का कारनामा है। और जी वक़्त मैंने अगली बात कहते हुए कहा, मैंने कहा कि जिस तरह नेशन से ATI निकाला जाए तो पीछे नन बचता है, इसी तरह मैंने कहा जुमला हमारी जो तंजीमात आले सुन्नत हैं इनको देख लें। अंजुमन तलबा इस्लाम की ड्यूटी ये थी कि नौजवान तैयार करके आले सुन्नत को क़यादत फराहम करना। मैंने कहा सारे के सारे इदारे देख लें,
जमात अहले सुन्नत हो, JUP की क़यादत हो, दावत इस्लामी हो, मिनाजुल कुरान हो, इदारा सिरात मुस्तकीम हो, जितनी अहले सुन्नत तरीक़ा लब्बैक हो, जितनी अहले सुन्नत की जमातें हैं, उनमें जो काम करने वाले ATI के कारकुनान हैं, उनको वहाँ से निकाल लें तो पीछे ज़ीरो बचेगी। वहाँ पर जो वर्कर है वो अंजुमन तलबा इस्लाम से गए हुए लोग हैं। तो मैंने कहा कि उसके बगैर तो वहाँ पर बचता ही कुछ नहीं है। तो जी वकार मैंने कहा कि ये थे अंजुमन तलबा इस्लाम के कारनामे, अंजुमन तलबा इस्लाम ने जो परफॉर्म किए। और इसके बरक्स ये एक मतलब तबलीगी जमात आगे बढ़ी ना, तो हमारी ये सारी तंजीमात मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर पा रही, वहाँ पर भी अंजुमन तलबा इस्लाम को आना पड़ता है। तो जी वकार ये अंजुमन तलबा इस्लाम की कोशिशों, मेहनतों और काविशों का नतीजा था। और क्यों था? बिकॉज कि अंजुमन तलबा इस्लाम जो है, इसने सैयदी मुर्शिदी या नबी इसके अलावा कोई और नारा लगाया ही नहीं। अंजुमन तलबा इस्लाम ने या रसूलुल्लाह के अलावा कभी कोई बात की ही नहीं, क्योंकि किसी भी तंजीम की बुनियादी तौर पर 4 चीज़ें होती हैं। पहला उसका नस्ब-उल-ऐन होता है, दूसरा उसका मोनोग्राम होता है, तीसरा उस जमात का झंडा होता है, चौथा उस जमात का स्लोगन होता है। तो जी वकार अंजुमन तलबा इस्लाम का मोनोग्राम तलबा के दिलों में सही इस्लामी रूह बेदार करना, जो कि इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्अ अफरोज़ा किए बगैर नामुमकिन है। अरे ये बात, तो इस बात में बात किसकी? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दूसरी चीज़ मोनोग्राम होती है, जिसे हम शनाख्ती अलामत कहते हैं। तो अंजुमन तलबा इस्लाम का जो मोनोग्राम है, जो शनाख्ती अलामत है, वो क्या है? ये सैयदी या रसूल अल्लाह का बैज है। तो ये अंजुमन तलबा इस्लाम का मोनोग्राम है। तो मोनोग्राम में भी बात किसकी? या रसूल अल्लाह, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तीसरी चीज़ किसी जमात का स्लोगन होती है। तो जी वकार अंजुमन तलबा इस्लाम का नारा सैयदी मुर्शिदी या नबी। तो जी वकार नस्ब-उल-ऐन में बात रसूलुल्लाह की, मोनोग्राम में बात रसूलुल्लाह की, स्लोगन में बात रसूलुल्लाह की। आप बोल नहीं रहे, स्लोगन में बात रसूलुल्लाह की। अब तीसरी चीज़ किसी जमात का परचम। तो अंजुमन तलबा इस्लाम का परचम ये आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर नीचे 2 ग्रीन पट्टियां, दरमियान में रेड पट्टी पर सैयदी या रसूल अल्लाह का मोनोग्राम। तो जी वकार ये ऐसे ही नहीं बना, इसको बनाया गया है बिकॉज के परचम वजाहत करता है। जैसे कि हमारा पाकिस्तानी परचम एक वजाहत करता है, उसका ग्रीन रंग क्या साबित करता है? या मुसलमान अक्सरियत में है, उसकी सफेद पट्टी या अकलियतों को रहने की इजाजत है, और उस पर चांद और सितारा हिलाल किस बात को साबित करता है? तरक्की की अलामत होता है। बिकॉज हिलाल किसे कहते हैं? पहली रात का चांद। पहली रात का चांद रोजाना बढ़ता है, तो ये हिलाल साबित करता है कि हम इंशाल्लाह बढ़ते चले जाएंगे। और सितारा रोशनी का इस्तारा होता है, तो ये रोशन मुस्तकबिल को साबित करते हैं चांद और सितारा। तो जी वकार ये जिस तरह पाकिस्तान का परचम है, अंजुमन तलबा इस्लाम का परचम भी आया है मुबारका की तफसीर, वो जो है रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना, कि दुनिया और आखिरत की हम कामयाबी चाहते हैं। तो ये सफ़ेद सुर्ख पट्टियाँ दुनिया और आखिरत की कामयाबी हैं, और दरमियान में ग्रीन पट्टी हमारी जदोजहद, रेड पट्टी हमारी जदोजहद को साबित करती है कि हुस्न दुनिया से हुस्न आखिरत तक की जदोजहद सैयद या रसूल अल्लाह के साए में। तो ये अंजुमन तलबा इस्लाम का परचम है। तो परचम में भी बात किसकी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब ये 4 चीज़ें जो अंजुमन तलबा इस्लाम ने दी, इन चारों चीज़ों में बात फ़कत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इससे अगली बात कि अंजुमन तलबा इस्लाम ने कभी अपनी गैरत का सौदा किया ही नहीं। अंजुमन तलबा इस्लाम ने कभी खुद को किसी और दर पर झुकाया ही नहीं। अंजुमन तलबा इस्लाम ने जब भी झोली फैलाई है, जब भी हाथेली फैलाई है, तो एक फ़कत और फ़कत बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाई है। तमाम किस्म की सियासतों से बचकर किसी शख्स का नारा अंजुमन तलबा इस्लाम ने नहीं लगाया, फ़कत सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाया है। तो ज़ी वकार अहले सुन्नत के रोशन मुस्तकबिल के लिए
سیدی یا رسول اللہ کے روشن مستقبل کے لیے اور طلبہ رائٹس کے حوالے سے کام کرنے کے لیے انجمن طلبہ اسلام کل بھی اس معاشرے کی ضرورت تھی، آج بھی اس معاشرے کی ضرورت ہے اور کل بھی اس معاشرے کی ضرورت رہے گی، بیکاز کہ انجمن طلبہ اسلام ہی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر کچے عقیدوں کے لوگ آتے ہیں اور انجمن طلبہ اسلام ان کو پکا کر کے طلبہ کی طرف دیگر ہماری جماعتوں کی طرف بڑھاتی ہے، اور اس طرح ہماری سیدی یا رسول اللہ کہنے والی تمام جماعتیں جو ہیں وہ پھلتی ہیں، پھولتی ہیں اور جی وقار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک ہر طرف پھیلتی ہے۔ اور اس کے بعد جی وقار اگلی بات کہتے ہوئے کہ جو انجمن طلبہ اسلام پر کام ہے، جو انجمن طلبہ اسلام کی ذمہ داری ہے، یہ ویسے تو 1968 میں انجمن طلبہ اسلام کو ملی، مگر حقیقت میں یہ تسلسل ہے اس میثاق کا جو عالم ارواح میں اللہ پاک نے انبیاء اکرام سے لیا، اور ان سے کیا عہد لیا کہ آپ نے دنیا میں جانا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ پر ایمان بھی لانا ہے، آپ کی نصرت بھی کرنی ہے، اور جی وقار انہیں یہ محبت کا گوہر دیا گیا، تو محبت کے لیے یہ ایک شرط ہے کہ محبت پریم کی زمین پر پنپتی ہی نہیں ہے، جہاں پر سکون کی زمین ہو وہاں پر محبت پر پھول ہی نہیں آتے، تو محبت کے پنپنے کے لیے، محبت پر بہار آنے کے لیے، محبت کے پودے پر پھول کھلنے کے لیے اسے ستم کی زمین چاہیے ہوتی ہے، اسے مشکلات کی زمین چاہیے ہوتی ہے، اسے مسائل کی زمین چاہیے ہوتی ہے۔ تو جی وقار اللہ رب العزت نے جب انبیاء کے دل میں یہ محبت مصطفیٰ کا جوہر رکھا تو پھر ان کے لیے جس زمین کا انتخاب کیا وہ ستم کی زمین تھی، وہ مشکلات کی زمین تھی، وہ مسائل کی زمین تھی، وہ کم وسائل کے پرابلم تھے۔ تو جی وقار جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک جتنے کے جتنے انبیاء آتے رہے، محبت رسول کا پرچار کرتے رہے، اور ساتھ مسائل کا سامنا رہا اور وسائل کی کمی رہی، یہاں تک کہ جو انبیاء کرام جن پر بڑی عالی شان بادشاہت آئی ہے، جیسے جناب سلیمان علیہ السلام، آپ پر نہ فقط اس دنیا کی بادشاہت تھی پر دیگر مخلوقات پر بھی آپ کی بادشاہت تھی، ہوائیں آپ کے تسخر میں تھی، پرندے آپ کا حکم مانتے تھے۔ تو جی وقار آپ جیسے نبی کو بھی اس محبت کے پودے کو پروان چاڑنے کے لیے اللہ پاک نے کبھی وہ مچھانی کا بھٹ چوکنے پر لگا دیا تاکہ یہ ستم کا سامنا رہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جنہیں مصر کی بادشاہی سے نوازا گیا، انہیں بھی کئی دن وہ گہرے کنویں میں نکالنا پڑے۔ تو جی وقار یہ جو انبیاء کرام تھے جنہیں یہ محبت کا تحفہ دیا گیا، انہیں ساتھ زمین ستم دی گئی، مسائل دی گئے، کم وسائل دیے گئے، اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب خاتم النبیین اللہ کے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، تو آپ کے آنے کے بعد چونکہ انبیاء کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو نبوت کا چاہے وہ ذلی کہے چاہے وہ بروزی کہے، جس حال سے بھی کہے، جو نبوت کی بات کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ لعین ہوگا، وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ تو جی وقار جب انبیاء کے آنے کا سلسلہ ختم ہوا تو یہ محبت رسول تو ازل سے لے کر ابد تک رہنی ہے، تو پھر یہ جو جوہر محبت تھا، یہ جو سیدی یا رسول اللہ کے فروغ کا عظیم کام تھا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سپرد ہوا۔ تو جی وقار جب ان کو یہ جوہر محبت دے دیا گیا تو پھر محبت کے لیے زمین کون سی چاہیے؟ ستم کی چاہیے، وسائل کی کمی، مسائل کی زیادتی۔ تو وہ جو انبیاء کو جو گوہر تھا، جو جوہر تھا، جب وہ ادھر شفٹ ہوا تو وہی مسائل ادھر بھی شفٹ ہو گئے۔ تو جی وقار پھر صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی زندگی دیکھ لیجیے، کبھی بدر میں دیکھیے، کبھی احد میں دیکھیے، کبھی خندق میں دیکھیے، یرموک و یمامہ، یہاں تک چلتے چلتے کربل تک آئے۔ تو جی وقار کربلا میں بھی ستم نے اپنی حد کر دی کہ جناب سر حسین کو نوکے نیزہ پر چڑھا دیا، ادھر عشق نے اپنی حد کر دی کہ نوکے نیزہ پر چڑھ کر بھی نعت مصطفیٰ کلام خدا کی تلاوت جاری ہے۔ سمجھا کہ سر کاٹ دیا ہے تو کام تمام ہو گیا ہے، مگر عشق نے بتایا کہ دھڑ ساتھ نہیں تو کیا، سر تو نوکے نیزہ پر پھر بھی سر بلند جا رہا ہے۔
जी वकार सहाबा का दौर ख़त्म हुआ, चूँकि सहाबी फ़कत वही है जिसने हुजूर की ज़ियारत की हो। जब सहाबा का दौर ख़त्म हो गया तो ये जो पैगाम इश्क़ मुस्तफ़ा था इसने तो आगे चलना था। तो जी वकार ये पैगाम सहाबा के बाद औलियाए कराम और सूफियाए कराम के सुपुर्द हुआ। तो जी वकार फिर इस पैगाम को औलियाए कराम और सूफियाए कराम चलाते रहे। और जी वकार चलते चलते बात पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और इदारों में पहुँचे तो विलायत और तसव्वुफ़ के लिए कभी कभी अल्लाह पाक ये बचपने में भी अता कर देता है, मगर इसके लिए रियासत की, इसके लिए मुजाहिदों की, इसके लिए इबादतों की ज़रूरत होती है और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस तक वो नहीं होती। तो जी वकार जब या रसूल अल्लाह के मोहब्बत के इस अजीम मिशन की मुखालफत यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में होने लगी तो फिर चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो जोहरे मोहब्बत मुस्तफ़ा है इसको आगे चलाना था, तो जी वकार ये जो अंबिया, फिर सहाबा, फिर औलिया और सूफिया का अजीम मनसब था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मनसब अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवानों के सुपुर्द कर दिया। और जी वकार फिर जब ये मनसब अंजुमन तलबा इस्लाम के जवानों के पास आया तो जो मेरी वो पुरानी बात है वो आपको याद रहेगी कि मोहब्बत का पौधा कहाँ पर उगता है? सितम की ज़मीन पर, मसाइल की ज़मीन पर। तो जी वकार जब मोहब्बत मुस्तफ़ा इन जवानों की दी गई तो फिर मसाइल और मुश्किलात और सितम वही दिए गए जो अंबिया, सहाबा, औलिया और सूफिया ने भुगते। तो जी वकार फिर अंजुमन तलबा इस्लाम ने भी जब ये पैगाम मोहब्बत कबूल किया फिर उन सितम्स को भी मोहब्बत के साथ गले लगाया। कभी पीरल को कुर्बान किया, कभी अफसल को कुर्बान किया, कभी तकी को कुर्बान किया, कभी जफ़र को कुर्बान किया। अरे ज़माने के थपेड़े ये सहते रहे, मगर बात फ़कत इश्क़ मुस्तफ़ा की, बात फ़कत नाम मुस्तफ़ा की, बात फ़कत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जी वकार अंजुमन तलबा इस्लाम ने इस अपने मनसब को और इस अपनी जिम्मेदारी को बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया। और जब लोग ये समझ रहे थे कि हम मोहब्बत करने वाले, नाम मुस्तफ़ा लेने वाले माज़अल्लाह नाउज़ बिल्लाह मिटा देंगे, अंजुमन तलबा इस्लाम ने उनको इतनी तरक्की दी कि सैयदी मुर्शिदी या नबी का नारा इतना फैला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अजीम नारे को इतना पसंद किया कि दुनिया के किसी कोने में भी आप सैयदी मुर्शिदी का नारा लगाएं तो जवाब या नबी की सूरत में आएगा। तो जी वकार आज के दौर में भी जब तालीम इतनी महंगी हो गई है कि कोई आम आदमी अब अपने बच्चे को तालीम दिलवा नहीं सकता, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का माहौल, अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कम है, तालीमी इदारे नहीं बल्कि पुलिस चौकियाँ बन गई हैं। जो मुख्तसर सा बजट हुकूमत तालीम के लिए रखती है वो उन सिक्योरिटी इदारों को दे दिया जाता है, और बदले में फीसें इतनी बढ़ गई हैं कि अब हमारी कौम के बच्चों के लिए तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया है। तो जी वकार इस दौर में ये ज़रूरत है कि अंजुमन तलबा इस्लाम जैसे अजीम इदारे का यूँ साथ दिया जाए कि जो आपके बच्चों को भटकने भी ना दें और आपके बच्चों की आला तालीम का लिए असबाब भी कर सकें। वो इदारों से, वो हुकूमत से ये अच्छे अंदाज में मुतालबा भी कर सकें कि तालीम रियासत की जिम्मेदारी है, इसको निभाया जाए, तालीम को फ्री किया जाए और हर खास व आम तक तालीम को पहुँचाया जाए। तो जी वकार अंजुमन तलबा इस्लाम इस दौर की ज़रूरत है, और इसके लिए आपने करना क्या है? एक तो ये कि चूँकि हम हैं मुस्तफ़ा वाले, हम हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले, तो जी वकार जो मुस्तफ़ा वाला हो उस पर ये लाजम होता है कि हम अपनी रूह और अपने कल्ब और अपने ज़हन की पाकीज़गी का एहतमाम करें। तो जी वकार मैं इसके लिए आपको किसी बड़े मुजाहिदे में नहीं डालता, मैं आपको कोई बड़ी लंबी चौड़ी इबादतों और वज़ाइफ की लिस्ट नहीं देता, मगर फ़कत कोशिश करके मेरा एक वजीफ़ा मान ले, और वो ये है कि हर वक्त बावजू रहने की कोशिश करें। तो जी वकार जब आप जिस्म की पाकीज़गी का ख्याल रखेंगे तो यकीन कीजिए पाक जिस्म
और पाक कुलूब भी मेरे मुस्तफ़ा का बसेरा है, मेरे मुस्तफ़ा का डेरा है। तो जी वकार, जब आप अपनी पाकीज़गी का एहतमाम करेंगे तो मुस्तफ़ा करीम हमारे दिलों को अपना मस्कन बना लेंगे, और जब हुजूर इस दिल में आ जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई बात उस पर छुपी नहीं रह जाती। तो एक तो कोशिश कीजिए पाकीज़ा रहें, दूसरा अंजमन तलबा इस्लाम के सिस्टम के साथ जुड़े रहने के लिए यकीनन आपकी हफ्तावार तरबियती नशिस्त होती होगी, हफ्तावार तरबियती नशिस्त को ना छोड़ें, उसमें आते रहें तो आपकी ज़हन जंग आलूद नहीं होंगे। और तीसरी ड्यूटी जो आपने निभानी है वो ये है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, और आपने कितने लोग सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करते होंगे, ज़रा हाथ खड़े कीजिए जो इस्तेमाल करते हैं। आप लोग नहीं करते जो सोशल मीडिया फेसबुक? बहुत आला जनाब, आप में कुछ लोग नहीं भी करते। अच्छा, जो करते हैं बस ये ड्यूटी निभाना वाले सभी हैं, बस कुछ और वैसे। अच्छा, जो करते हैं तो फ़कत अपना मुहासबा इतना कर लीजिए कि हमने 24 घंटों में से मेरे ख्याल में अब हमने नींद के घंटे भी मोबाइल को दे दिए हैं, पढ़ाई के घंटे भी मोबाइल के दे दिए हैं, रिश्तों के और घरों के घंटे भी मोबाइल को दे दिए हैं। इवन के खाना एक हाथ से चल रहा होता है, वो आपका हाथ सालन में जाए या ना जाए मोबाइल से नज़र आपकी चूकती नहीं है। तो ऐसे माहौल में फ़कत ये सोच लें कि हमने 30 सेकंड फ़कत एक तंजीम को दे देने हैं, और क्या करना है, जो खुद पोस्ट बना सकता है वो बनाकर लगाए, जो कोई कोटेशन लेकर अंजमन तलबा इस्लाम लिख सकता है तो वो लिख कर लगाए, वगरना ये लाजम कर लें कि एक ना एक तंजीमी पोस्ट रोज़ाना शेयर करनी है। शेयर करने पर कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 1 सेकंड। तो अब वो ऊपर जाते जाते अगर कोई तंजीम की पोस्ट आ जाए, कमेंट ना लिखें, मुश्किल लगता है, लाइक दे दें या शेयर का बटन दबा दें, तो जी वकार आगे बहुत सारे लोगों के पास चली जाएगी। तो इस तरह आपका एक पैगाम जो है वो लोगों तक चला जाएगा। तो अगर इस अंदाज में हम निभाने की कोशिश करेंगे तो यकीन कीजिए हम विजन एक रखते हैं, हम ख्वाहिश रखते हैं कि जिस तरह मछेरा जाल फेंक कर मछलियों को नीचे ले लेता है, इस तरह हम ये या रसूल अल्लाह की मोहब्बत का जाल पूरे पाकिस्तान में ऐसे फेंकेंगे कि हर बंदा अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत का नूर फील करेगा। तो इस अजीम मकसद के लिए, इस अजीम मिशन के लिए हम सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। और जी वकार बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि हमारे ये क्या करने से क्या हो जाएगा, तो इसके लिए एक बात याद रखें कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब वो नार जलाई गई, जब वो आग जलाई गई, तो एक चिड़िया चोंच में पानी भरकर उस तरफ जाने लगी, तो किसी ने कहा कि वहाँ तो दूर से गुजरते हुए बंदा भुन जाता है, और इतनी बड़ी आग है, तेरे इस एक कतरे से वो बुझ जाएगी, पागल है तू? तो उस चिड़िया ने कहा, पागल नहीं हूँ, मुझे ये भी पता है कि मेरे इस एक कतरे से नहीं बुझेगी, मगर ये है कि जब आग बुझाने वाले और आग जलाने वालों की लिस्टें बनेंगी तो मेरा नाम तो बुझाने वाली लिस्टों में आएगा ना। तो जी वकार, जब ये अकीदा होता है, जब ये मोहब्बत होती है, तो जी वकार फिर वहाँ से कबूलियत मिल जाया करती है। तो जी वकार, ये ना सोचना कि आपके एक पोस्ट शेयर करने से क्या हो जाएगा, ये ना सोचना कि आपके एक बार वुज़ू कर लेने से क्या हो जाएगा। यकीन कीजिए, आपकी एक एक पोस्ट शेयर करने से इस दुनिया का निज़ाम बदल सकता है, इस दुनिया का तमाम बदल सकता है। यहाँ पर मोहब्बत और बुग़्ज़ के जो जंगे हैं, तो मोहब्बत का गिराफ बढ़ सकता है, बुग़्ज़ का गिराफ गिर सकता है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह पाक जब तक ये सांसें चल रही हैं तो हर सांस के साथ नाम मुस्तफ़ा पुकारने की तौफीक दे। कल कब्र में जाएं तो वहाँ पर हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे व दुहा की ज़ियारत नसीब हो, और जब हशर में जाएं तो हुजूर की शफात नसीब हो, और जन्नत में हुजूर का साथ नसीब हो, ताकि वहाँ पर भी चेहरा व दुहा की ज़ियारतें चलती रहें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।